Hello, 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 hello. Please join, please join. As you come in, join in, please, join in, please. As you are coming in, let me know where are you joining from. I have an announcement to make. A very important announcement to make. Drop in the comment box. Where are you joining from? Where are you joining from? What part of the world are you joining from? Praise God, hallelujah. We thank you that you are joining in. As you have joined in, do follow. I have an important announcement to make, and one of them is concerning our channel also. Please follow and share. Hallelujah. Glory to Jesus. Very important information I have to let you know. This is very important. This is very, very important for you, me, and everyone. Those who are joining in, I welcome you. Let me know. Mr. Vijay Rawat, where are you joining from? Where are you joining from, Mr. Rawat? Glory to Jesus. Let me know where are you joining from. Mr. Rawat, let me know where are you joining from. Where are you joining from? I welcome you all. I welcome you. As you come in, do not forget to like, follow, and share. Before I go any further with the information that I have to give you, you must follow. Follow for more information. Keep following for good news. Keep following for the good news. God is merciful. He is merciful to His people. I have an information that I have to tell you. I have to bring that information before you. Hallelujah. So if you are following me, it is very, very important for you.
Amen. If you have been following me, this information is really going to put effect on you. It's going to affect you a lot. It's going to affect me a lot. So you have to be here, keep following, and join. Very crucial. This is very important. M. Kumar, I welcome you. M. Kumar, I welcome you. This is very important information that I am bringing to you right now. I am bringing it to you right now. This is very, very important. Please follow. If you haven't followed me, if you haven't clicked the follow button and follow, join, follow whatever is showing on my status, you can follow. If you follow, do share. We need followers. And the information is very crucial. That information, important announcement, I would say. It is an information. Because it is regarding our channel. It is regarding the channel I am running. And it may affect you because if it happens to us, it will affect you also. If it happens to us, it may directly or indirectly affect you, because we are going to lose you, and you cannot talk to me as I am talking to you right now. This is very crucial announcement, and the announcement is this. Please let me know if you have followed me. Those who are my followers, let me know who are my followers. How do you know that you are my follower? You need to follow and share. You need to follow and share. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Join, follow and share. Join, follow and share. This is what I'm telling you. We are waiting for more followers to come in. We are waiting for more people to come in. Before I make that important announcement, it is very important for you and me. It is very important for you and me. Join in. As you join in, do not forget to follow. 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 Because if you follow, then the Spirit of the Lord moves. Amen. Jesus said, follow me. And Apostle Paul said, follow me as I follow Christ. Join in. Amen. So let us all be on one page. Let us all be on one page. Amen. Let us all be on one page. Let us be one and united. This is very, very important, very, very crucial for you and me, and for everyone, those who are following me, those who are with us for a long time now. It's going to affect you a lot. Okay, the announcement here is that Instagram is going to close our live because they are telling me that they have changed some rules, and if I do not have 1,000 followers, then very soon they are going to shut me down. I cannot go live on Instagram. So I need your help. Send to as many people. Tell your people, tell your friends, your families to follow this channel. Follow this channel. Support us so that we may come live. We come live so that we can come and do what God has appointed us to do. Amen. What God has appointed. See, if the word of God cannot go live, if I have to record, and recording is not possible because they are not more than 15 minutes or more than 3 minutes. So this is very crucial for you and me to be to reach the world.
If you want to reach the world with me, you have to follow me. You have to follow me, because if you are not following me, very soon, this is what the Instagram is saying, very soon they are going to shut my live thing off. So they are going to take away that provision, take away that facility that they have given me of going live. I need 1,000 followers. Come on, we can make it today, at least 100 followers. We can make it today, maybe 200 followers. We must increase at least 500. I need 500 followers today that may follow me, follow this channel, follow me, follow this channel, because they are telling me that they are going to shut down my live streaming. Why? Because I don't have 1,000 followers, and they have changed the rules from now on. They want me to have 1,000 followers first, and then I shall be able to be on live. I know many of you have been following me but haven't been liking and sharing the post, but I want you to share the post. Amen. अभी मैं हिंदी भाषा वालों के लिए बोल देता हूँ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ये सुविधा अभी हमारे लिए नहीं होगी, क्योंकि बड़ी जल्द इंस्टाग्राम, अगर हमारे चैनल में 1000 फॉलोअर्स नहीं होते हैं, तो बड़ी जल्द वो लोग हमारा लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देंगे, और फिर मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं आ पाऊँगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम सब लोग मिल करके मदद करें, सहायता करें। 1000 फॉलोअर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, कृपया अपने फैमिली मेम्बर्स को और सबको, अपने फ्रेंड्स को बोलिए इसको फॉलो करें, इस चैनल को फॉलो करें, ताकि आप तक सुसमाचार पहुंचता रहे, परमेश्वर की बात पहुंचती रहे, परमेश्वर की आवाज़ आप तक आती रहे। आमीन। ये चैनल एक सुविधा है, ये चैनल एक सुविधा है बहुत सारी बातों को लेकर के। आमीन। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये सुविधा है हमारे लिए। हम वचन का प्रचार करते हैं, और जब हम वचन का प्रचार करते हैं, हम चाहते हैं कि ये वचन दूर तक पहुँचे। दिस वर्ड दैट वी स्पीक, द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट मस्ट रीच लार्जर ऑडियंस। सो ज़्यादा लोगों के पास आने के लिए, परमेश्वर का वचन को जाने के लिए आप लोगों का सहायता चाहिए, और आप लोगों के सहायता में मुझको फॉलो करें। हालेलुया। इस चैनल को फॉलो करें, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सही समय पर, जैसे ही प्रभु कोई बात बताता है, मैं आपके सामने लेकर आ सकूं। आमीन। आज कम से कम हमें 500 फॉलोअर्स तो करने ही करने हैं, और अगर हम 500 फॉलोअर्स तक पहुंच जाते हैं, तो अगले 500 करने में हमें देरी नहीं लगेगी। आमीन। सो हम लोग 1000 फॉलोअर का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। वी नीड 1000 फॉलोअर्स टू मेक दिस लाइव एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू। सो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग ऐसा करिए। सो आज कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं। हम बात कर रहे थे पिछले दिनों में अफ्लिक्शन की, दुखों की, तकलीफ़ों की। आमीन। सो ये तकलीफ़, अफ्लिक्शन कहाँ से आ रही है? ये हमें पता लगता है कि हमें मालूम पड़ा है वचन के द्वारा कि अफ्लिक्शन जो है वो परमेश्वर से भी होती है, परमेश्वर के द्वारा, है ना, या फिर शैतान के द्वारा। ये दो शक्तियां हैं जो हमारे को अफ्लिक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। शैतान भी इन्फ्लुएंस करा जाता है, और परमेश्वर के द्वारा भी ये ट्रायल्स आते हैं, ये परीक्षाएं आती हैं। तो परीक्षाएं आती हैं, जब परमेश्वर की ओर से आ रही हैं या शैतान की ओर से आएगी, कैसे जानेंगे? ये भी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वेयर आर योर अफ्लिक्शंस, योर ट्रायल्स coming from, where are your afflictions, your challenges are coming from. So we must understand that Bible offers guidance. बाइबल में मार्गदर्शन है। आमीन। परमेश्वर जो परीक्षा लेता है, ट्रायल करता है, टेस्टिंग करता है, वो रिफाइनमेंट के लिए करता है।
ठीक है, वो रिफाइनमेंट क्यों कर रहा है? वो आपको तैयार कर रहा है। किस लिए? परमेश्वर आपको तैयार करता है भले मकसद के लिए जो परमेश्वर ने रखा है। मेरे पास एक योजना, ये शाया नबी की पुस्तक कहती है, मेरे पास एक योजना है, तुम्हारी हानि की नहीं है, तुम्हारे लाभ की है। तो उस लाभ को आपके जीवन में आने के लिए परमेश्वर आपको कुछ परीक्षाओं में, अफ्लिक्शंस में, टेस्टिंग में जाने देता है, ट्रायल्स में जाने देता है, ताकि आप उसमें परिपक्वता पाएं, ताकि आप उसमें रिफाइन हो जाएं और उसमें सॉलिड ग्राउंड पकड़ें। आमीन। सो परमेश्वर आपको रिफाइन कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है और आपको प्योरिटी की ओर लेकर के जा रहा है। कोई भी अफ्लिक्शन है, बीमारी के द्वारा आई है, किसी तकलीफ के द्वारा, कोई भी तरीके की अफ्लिक्शन है, आपके ऊपर फाइनेंशियल अफ्लिक्शन हो सकती है, आपके सामने बहुत सारे तरीके की अफ्लिक्शन है, टेस्टिंग ऑफ फेथ हो सकता है, आपके विश्वास का परखे जाना है ना, आपके चरित्र का परखा जाना, ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले, प्रभु जब मुझ पे परीक्षा आती है, बाइबल में भी लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में अपने आप को पाते हो, तो जब हमें पता लगता है कि हम अलग अलग तरीके की परीक्षाओं में हैं, अलग अलग तरीके की टेस्टिंग में डाले जा रहे हैं, उस समय हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है और हमें बोलने की ज़रूरत है, हे पिता परमेश्वर हमें फजल दे, हमें ग्रेस दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड गिव अस ग्रेस एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, एट द टाइम ऑफ दिस ट्रायल। लॉर्ड गिव अस फेथ, फिल मी विद योर फेथ, फिल मी विद योर फेथ। प्रभु अपने दया, अपनी करुणा से मुझे भर, और प्रभु अपना बल दे, अपना आत्मा के द्वारा चला, अपने आत्मा के द्वारा लेकर के चल। परमेश्वर आपको अपना बल और आत्मा के द्वारा चलाता है। आमीन। सो जब आपके ऊपर कोई भी परीक्षा आती है, एनी ट्रायल दैट यू फेस, एनी चैलेंज दैट यू फेस, एनी टेस्टिंग टाइम दैट कम्स इन योर लाइफ, दैट टाइम ऑफ टेस्टिंग will produce faith, will also produce endurance. It will also produce the purpose of God in your life. If the testing is from God, if that trial is coming from God, this will produce endurance. This will produce perseverance. आपके अंदर सहनशीलता, आपके अंदर संयम, सब बातों को वो उत्पन्न करने के लिए, और आपको परमेश्वर अपने मकसद के लिए तैयार कर रहा है। आमीन। जब ऐसी चीज़ों को जब आप देखते हैं, तब आप देखते हैं कि परमेश्वर का मकसद आपके जीवन में, योजना को पूरा करने के लिए वो अब करने जा रहा है। आमीन। तो ये बात है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब शैतान हमें परीक्षा लेकर आता है, तो वो क्या कहता है? वो शैतान की जो परीक्षा होती है ना, वो परीक्षा आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगी, परंतु जो परमेश्वर की तरफ से परीक्षा आती है वो परमेश्वर के और निकट लेकर के जाती है। सो इसीलिए आपको ये जानना है, द मोर यू आर टेस्टेड फ्रॉम गॉड, मोर द गॉड टेस्ट यू, मोर ट्रायल्स एंड चैलेंजेस दैट आर प्लेस्ड इन योर लाइफ आर फ्रॉम गॉड। Those trials and those testing times will pull you towards God. But at the same time, when Satan is doing that, when Satan is testing you, Satan is tempting you, he is putting temptations over you, he will make sure that you are pulled away from God. He will take you away from God's presence. शैतान चाहेगा कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करा जाए, तो आप उस परीक्षा को समझ जाएंगे कि ये मेरे को शैतान लेकर के चल रहा है, ये शैतान की ओर से परीक्षा आई है। परंतु अगर आपको ये परीक्षा परमेश्वर के और निकट जाने के लिए प्रोत्साहित करती है, पुश करती है, तो आप ये समझिए कि परमेश्वर आपको रिफाइन कर रहा है अपनी सिद्ध मकसद के लिए, अपने पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ गॉड। He is refining you, he is molding you, he is making you, he wants you to shine better, he wants you to shine more, brighter. So परमेश्वर चाहता है कि आप चमके और अच्छे से चमके, ताकि आपका जब
आग में ताया हुआ विश्वास, जैसा कि पत्रस में लिखा है, आग में ताया हुआ विश्वास नाशवान सोने से भी अधिक चौका होकर के निकले। तो आपको विश्वास को परखा जाता है, आपके चरित्र को परखा जाता है, आपके हर एक चीज में आपको परखा जाता है। परमेश्वर कहता है प्रूव योरसेल्फ वर्दी, अपने आप को साबित करें कि आप सही हैं, आप सही मायनों में मसीह हैं। एक मसीह का परखा जाना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के द्वारा। परंतु यदि शैतान परख रहा है तो वो शैतान यदि आपको टेम्पटेशंस में डाल रहा है, आपको परीक्षाओं में डाल रहा है, आपको लालसाओं में डाल रहा है, तो ये समझो कि परमेश्वर नहीं, वो शैतान आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर खींच रहा है, ले करके जा रहा है, अवे अवे अवे। सो टेस्टिंग पॉइंट हम देखते हैं कि वो क्या करता है, टेस्ट क्या करता है, आपके फेथ को डेवलप करता है, आपको नया बल देता है, आपके चरित्र को प्योर करता है, आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को डेवलप करता है। रिवाइवल आता है आपकी लाइफ के अंदर। रिवाइवल, आपने बहुत सारी रिवाइवल मीटिंग अटेंड करा होगा पर कुछ नहीं हुआ, परंतु जब तक परमेश्वर वो रिवाइवल आपके अंदर ना डाल दे, वो रिवाइवल अंदर होता है, बाहर नहीं मिलता रिवाइवल। ठीक है, सो यू नीड टू ग्रो। आप बढ़ना चाहते हैं मसीह में, आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं? आत्मिक रूप से जब आप बढ़ना शुरू करेंगे, जब आप ग्रोथ को देखेंगे, आत्मिक उन्नति को देखेंगे, तब आप देखेंगे वो हिडन एरियाज, तब आप वो देखेंगे वो छुपे हुए गुप्त एरिया, जहां पर से आपको बढ़ना है, जहां पर जिस जगह से आपको इंक्रीज करना है। आमेन। सो आपको इंक्रीज करने के लिए परमेश्वर ने हमारे सामने अय्यूब का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, वे गॉड अलाउड सैटन टू अफ्लिक्ट हिम। शैतान को परमेश्वर ने अनुमति दिया कि वो उसके ऊपर परीक्षा लेकर के आए। ठीक है ना। फेथ अकॉर्डिंग टू जॉब की किताब, अय्यूब की किताब में पहला अध्याय 6 से 12 जब आप पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है इस बारे में। आप 6 से 12 पहला अध्याय अय्यूब की किताब पहला अध्याय 6 से 12 आप पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि अफ्लिक्शन के दौरान, उस मुसीबत और उस टेम्पटेशन, उस ट्रायल के दौरान उसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा था, उसने कैसे कार्य किया है। आप अय्यूब की ज़िंदगी से सीख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं अपोस्टल पौलुस की ज़िंदगी से हम देखते हैं, वो कहता है एक कांटा मेरे को चुभा है, थॉर्न इन माई फ्लैश ही सेज। तो 2 कुरिन्थियां 12 की 7 से लेके 10 तक। तो आप जब ये बातों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये अफ्लिक्शंस जो थी, ये 2 लोगों के जीवन में जो अफ्लिक्शन है, जो ट्रायल है, जो टेस्टिंग टाइम है, उसके द्वारा विच यूज्ड टू प्रिवेंट प्राइड, उनके बीच का, उसके अंदर जो घमंड और अभिमान था, उसको तोड़ने के लिए प्रभु ने ऐसा किया हुआ था। Sometimes that problem in your life, sometimes that pain in your body, sometimes that disease that has taken you, oh, that is affliction from God to pull you out and make you down, humble. Sometimes problems, sicknesses, diseases come to humble you. They are from God. Paul says, there's a thorn in my flesh. I have a thorn in my flesh. It pricks me, it disturbs me, it gives me pain, it hurts me. वो जो कांटा मेरे शरीर पर चुभता रहता है, पौलुस कहता है, वो मुझे दुख देता है। आप सोचिए ना, अगर आपके स्किन में, आपके मांस में यहाँ पर कांटा चुभा होगा तो वो कितनी देर चुभता रहेगा। जब भी हाथ लगाएंगे वो चुभेगा, निकालने से निकलता नहीं है, वो गहरा चला गया और वो तंग कर रहा है। वो आपको कोई पेन है कहीं पर और वहाँ पे सोजिश आ गई है, इलाज कर रहे हैं, मिल नहीं रहा, परंतु वो पेन भी जा रहा नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप हम्बल बने। गॉड वॉन्ट्स टू ब्रिंग ऑल दैट प्राइड इनसाइड ऑफ यू डाउन। ही वॉन्ट्स टू रिमूव दैट प्राइड। आई ऑलवेज से दैट why was Job tested, even though Bible said that Job was righteous in that area. But पौलुस वचन क्या था, अय्यूब तो धर्मी जन था, पर फिर भी परीक्षा उस पे आई। क्यों? मैंने ये बोला था, क्योंकि वो बलिदान अच्छे लाता था, बहुत अच्छा एक व्यक्ति था, अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति था। हो सकता है कि उसमें प्राइड है, और उस प्राइड के कारण परमेश्वर ने उसके घमंड को नाश करने के लिए, उसके अभिमान को तोड़ने के लिए ऐसा करने के चाहा। हालेलुया। विच ऑल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट प्राइड। पौलुस की जिंदगी में
प्राइड था, क्योंकि उसको प्रकाशन यीशु मसीह से मिला और उसने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना। उसका एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल बहुत हाई लेवल पर था और उसके साथ साथ उसको नॉलेज बहुत थी। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उस नॉलेज की वजह से, उस एजुकेशन की वजह से, उसकी रेपुटेशन जहाँ से वो आता है उसकी वजह से उसके अंदर प्राइड था। सो प्राइड परमेश्वर को पसंद नहीं है। सो टू प्रिवेंट हिम टू राइजिंग इन प्राइड, गॉड गेव हिम अ थॉर्न इन द फ्लैश। परमेश्वर ने उसको वो कांटा चुभाया ताकि उसके अंदर का अभिमान टूटा रहे, उसके अंदर का अभिमान टूटा रहे और ये दीनता के साथ, नम्रता के साथ मेरे सामने आए। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में लाना चाहता है। मैंने बोला ना, जब परीक्षा आती है तब हमें मालूम पड़ जाता है ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। जो शैतान की ओर से परीक्षा आती है वो आपको परमेश्वर से दूर करती है। जो बातें आपको परमेश्वर की ओर से ट्रायल्स और परीक्षाएं आती हैं वो सब बातें आपको परमेश्वर की ओर खींचती है और गहरे रिश्ते में लेकर के जाती हैं। मेरे को अगर परमेश्वर ने दुख दिया है, परमेश्वर ने मेरे शरीर में कोई पेन दी है, मेरे को कोई लिमिटेशन दी है, तो मैं उस लिमिटेशन को लेकर के प्रभु के पास जाता हूँ। मैं बोलता हूँ प्रभु, आमीन। मैं कहता हूँ प्रभु ये कांटा मुझसे हटा ले, प्रभु ये प्याला मुझसे हटा ले, परंतु यदि तू चाहे तो मैं इसे पीऊंगा। आमीन। गॉड वॉन्ट्स यू टू follow him in pain, in tribulation, in testing times, so that he may increase your faith. Thank you for following me. Those who are following, those who are new followers, I thank you. Anyone who is a new follower, I thank you. Please follow me because I need 1000 followers. हमें 1000 फॉलोअर चाहिए इस लाइव को मेंटेन करने के लिए। हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट चलने के लिए 1000 फॉलोअर्स चाहिए। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग कृपया हमारी मदद करें। 1000 फॉलोअर कोई बड़ी बात नहीं है। आमीन। 1000 फॉलोअर, 500 अगर आज भी हो जाते हैं तो हम अपना टारगेट अचीव करने से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। तो 500 आज हो जाएंगे, अगले समय में हमें और फॉलोअर्स, मैं तो कहता हूं अगर 1000 आज हो जाएं तो और भी अच्छी बात है। तो हम मेरे को जो नोटिस आया वो इंस्टाग्राम से मुझे नोटिस आया है कि वी आर soon going to take this privilege out of you because you don't have 1000 followers. 1000 फॉलोअर करिए प्लीज। आमीन। करिए, बढ़ाइए इनको, लाइक करिए। कितना मुश्किल है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, आप कर सकते हैं। हालेलुया। आप हमारी मदद और सहायता करें, आप हमारी मदद और सहायता करें। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पौलुस की जो अफ्लिक्शन है, पौलुस को जो सताव आया, जब उसको परीक्षा में, उसको दिन रात उसके सामने एक परीक्षा रही, एक टेस्टिंग टाइम रहा। वो टेस्टिंग टाइम क्या, 2 कुरिन्थियाँ 12:7 से लेकर 10 तक आप पढ़ सकते हैं। 2 Corinthians chapter 12 7 to 10 you can read about Paul's affliction, the thorn that he talks about, the thorn in my flesh. What is the thorn in your flesh? God has placed it over there with a purpose, because God says I want you to fulfill my purpose along with this thorn in your body, because that thorn is going to humble you, that thorn is going to pull you down and make you come closer to me. If there is no thorn in your life, you cannot go closer to God. If there is no pain in your life, you cannot draw closer to God. This is godly affliction. This is godly affliction. I am being afflicted by God so that I maintain myself before Him in His presence. So I keep running to Him. So I keep following Him. So I lean not on my understanding but on God Himself. Amen. मेरे को इस शरीर में कांटा चुभाया गया। क्यों कांटा चुभाया गया? ताकि मैं परमेश्वर की ओर फिरा रहूं, उसके चरणों में बैठा रहूं, उसके पास जाऊं, उससे रिश्ता बनाऊं। ये कांटा इसलिए चुभाया गया है ताकि परमेश्वर आपके अंदर का, मेरे अंदर का वो घमंड, वो प्राइड, वो अभिमान आपका निकाल करके बाहर करे। गॉड इज डीलिंग विथ यू। परमेश्वर आपसे उन बातों के अंदर जूझ रहा है, आपसे बात कर रहा है कि परमेश्वर यूं कहता है कि जब ये कांटा मैं चुभाता रहूँगा तब तक ये मेरे पास आता रहेगा। आमीन। Afflicted by God. Are you afflicted by God?
or by Satan. क्योंकि शैतान की जो एफ्लिक्शन है, शैतान जब टेस्टिंग करता है, शैतान जब आपको ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशंस में डालता है, तब वो क्या करता है, वो आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। परंतु जब परमेश्वर डालता है, वो आपको उसकी ओर खींचती है। मैग्नेट है, हालेलुया। एक मैग्नेट है रिबेल करता है, एक मैग्नेट वो पुल करता है, अपनी ओर खींच लेता है, चुंबकीय शक्ति बन जाता है परमेश्वर आपकी जिंदगी में। He becomes a magnet. Is God your magnet at the time of trouble, at the time of tribulation, at the time of testing, at the time of trials? Is God your magnet point? Are you being pulled by God, or you were driven away by Satan? Depends. May God bless you. May God bless you. May God pull you toward Him. May God pull you toward Him. This is my prayer for you. Now I want you to follow and share. Share this broadcast to as many people as you can. We want 1,000 followers, because Instagram has noted us that they have changed the rules for going live. If I don't have 1,000 followers, they will pull away that live provision, that privilege for me. So I want you to enjoy this live. If you want to enjoy this live, if you want to interact with me, if you want to be with me, interaction and learn new things with me, follow 1,000 people, not a big number. 1,000 लोग बहुत बड़ा अंक नहीं है। 1,000 लोगों का हमें फॉलोइंग चाहिए। आमेन। 1,000 लोगों का फॉलोइंग चाहिए। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। परमेश्वर में आपको शांति मिले। मे गॉड ब्लेस यू। मे द पीस ऑफ क्राइस्ट बी विद यू। आमेन।